Hello students, myself Kritika Verma. I am your NEET Biology faculty. Today is the fourth lecture of chapter Morphology of Flowering Plants, in which we will study the parts of flower in detail. Let's start our topic. Parts of a flower. As we have already studied the detailed structure of a flower, usually flower consists of majorly 4 holes. जो ज़्यादातर फ्लावर होते हैं उसमें ये 4 होल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं. These are calyx, corolla, अंडुशम एंड गाइनोशियम. अब ये घेरे हैं तो ये किसी से बने हुए होंगे, तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल यूनिट्स भी होंगी. सी द आउटर मोस्ट होल, इट इज कैलिक्स. इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स. दीज आर ग्रीन लीव्स. आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का. नेक्स्ट टू द कैलिक्स इज करोला. इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. कलरफुल लीव्स हैं ये. नेक्स्ट टू द करोला इज एंडोशम. इट इज मेल रिप्रोडक्टिव होल. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स. And the innermost whole, it is gynoecium, it is female reproductive whole. It consists of carpels, या फिर you can say that pistil, carpels. Let's draw the structure of a flower. See, the stalk of a flower, it is known as pedicel. It is not necessary that all flowers have pedicels. Some flowers don't have pedicels. These type of flower are known as sessile flower. If the flowers have pedicel, then they are known as pedicellate flower. So the stalk of the flower, it is known as pedicel. जो आप जहां से फ्लावर को पकड़ते हो, स्टॉक है जो. The upper part of the pedicel gets swollen, which bears all the floral parts. It is known as receptacle or thalamus. जो ये upper part है, ये swollen होता है, इसके ऊपर फ्लावर के अदर पार्ट्स अरेंज होते हैं, सारे पार्ट्स अरेंज होंगे. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेप्टिकल या थैलमस. receptacle या फिर thalamus. Now the outermost hole of a flower, it is calyx. It consists of sepals. So here are the sepals, green leaves. Let's shade it. These are sepals. Sepals. And the hole which is formed from sepals, it is known as calyx. Next to the calyx is corolla, which consists of petals. These are petals. Petals. Shade them also. These are petals. Petals. Petals form corolla. Corolla. Next to the corolla is androecium, which consists of a stamen. Let's draw the stamen also. The long thread-like part of the stamen is known as filament, and upper lobe part is known as anther. Usually anthers are bilobed. Here is stamen. Here also stamen, anther, and it is filament. These two form stamen, and the hole which is formed from stamens known as androecium. Androecium. And the innermost hole, it is gynoecium, which consists of carpel. The lowermost part of the carpel, which is swollen, it is known as ovary. The long cylinder-like part, it is known as style, and the uppermost part, it is known as stigma. So here, ovary, style, the upper part is stigma. Stigma, style, and ovary. These three form carpel.
and carpal form gynoecium. Gynoecium, it is innermost hole. तो फ्लावर में आपके मोस्टली फ्लावर में ये 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं. If it is a bisexual flower, then both male and female holes are present. Gynoecium and endoecium both are present. If it is a unisexual flower, then either male part and female part are present. या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. सो वन बाय वन हम 4 होल्स को डिस्कस करेंगे. सी, आउटर मोस्ट होल फर्स्ट नंबर पे हम लोग कैलिक्स को डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड नंबर पे आप करोला को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी androecium and at last gynoecium. Let's start with calyx. Calyx. Calyx is the outermost hole. See, outermost hole, and the unit of calyx are sepals. या फिर आप कह सकते हो जो मेंबर्स हैं कैलिक्स के वो सेपल्स हैं. सेपल्स आपके अटैच होते हैं और जो होल बनता है उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन. ये ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक है, लीफ की तरह ही है. अब नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स या फिर सेपल्स का क्या फंक्शन है? बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना फ्लावर को, एज फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट मीन्स इट कंटेन्स मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट्स. अब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा भाई, उससे आगे आएगी जनरेशन, न्यू जनरेशन आएगी, वो स्पीसीज मेंटेन रहेगी इस यूनिवर्स में, अर्थ पे रहेगी. सो वहां पे यंग स्टेज पे भी तो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए. भगवान ने क्या दे दिया इनको? सेपल्स दे दिए. यंग स्टेज पे सेपल्स इसको पूरी तरह से बड को कवर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे. सो प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज. फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं सेपल्स या कैलिक्स. कैलिक्स में भी गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस? सी हियर. इन सम केसेस sepals are fused like this, like in case of hibiscus. Have you seen all the flower of hibiscus? Here sepal 1 2 3 4, these all are fused. ये आपस में क्या है? फ्यूज है. नीचे से देखिए जुड़े हुए हैं आपस में एक साथ. This type of calyx is known as gamosepalous. When the sepals are fused, it is known as gamosepalous. But in case of like rose में sepals जो होते हैं, these are free, directly attached होते हैं thalamus से, these are free like this, एक दूसरे के साथ fused नहीं है. This type of calyx is known as polysepalous. Polysepalous. Function of calyx या function of sepals is to protect the flower at bud stage. Bud stage में flower को protect करना. डायग्राम, सीधा डायग्राम है. गेमोसेपलस में हिबिस्कस का दिया गया. ये देखिए यहाँ पे नीचे की साइड फ्यूज है इस तरह से, ये फ्यूज है सारे सेपल्स आपस में. इट इज नोन एज गेमोसेपलस. सेपल्स आर यूनाइटेड. और पॉलीसेपलस के केस में क्या है? ये देखिए आपका सेपरेट है. दिस इज नोन एज पॉलीसेपलस. नाउ द नेक्स्ट होल इज कोरोला. कोरोला कंप्राइजेस ऑफ पेटल्स. हियर पेटल्स. Petals are colorful leaves. Petals are usually brightly colored in order to attract the insect for pollination. See, flower में जो male gamete present होता है, it is present inside pollen and pollens are present inside anther. That is the structure of a stamen, male reproductive part. Stamen consists of this part, filament, and upper part is known as anther. Cut the anther from here. It contains pollen sac. Inside this pollen sac, pollen grains are there या pollens are there. एक pollen sac, 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेंटर पे. These pollen sacs contain pollens. एंथर आपका बर्स्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिसेंस ऑफ एंथर. pollens बाहर रिलीज हो जाते हैं. And inside these pollens male gametes are there. So for fertilization of male and female gamete, आगे न्यू जो लाइफ है वो तभी आएगी जब मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होगा एंड वो मेल गैमीट पॉलन के अंदर प्रेजेंट है. सो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होना पड़ेगा ना फीमेल गैमीट के तक या फीमेल पार्ट तक. पॉलेंस के पास अपने पैर नहीं है जिससे वो चल के फीमेल पार्ट तक जा सके, और उसको जाना कहाँ है? स्टिग्मा तक. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन from the anther to the stigma of a flower, of a same flower or different flower.
ऑफ अ फ्लावर, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। अब अपने आप तो चल के नहीं जाएंगे, सो फॉर पॉलिनेशन दे नीड सम पॉलिनेटिंग एजेंट। इंसेक्ट्स आर वन ऑफ देम, इंसेक्ट इनमें से एक है। तो इंसेक्ट क्यों जाएगा फ्लावर के पास? जब फ्लावर से इसको कुछ मिल रहा होगा, लाइक उसमें नेक्टर है या फ्लावर अट्रैक्टिव है या फ्रेग्रेंस है। तो पेटल्स आपका फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट उसके पास जाते हैं एंड रोल प्ले किसमें करते हैं? पॉलिनेशन में। सो पेटल्स आर यूजुअली, ज्यादातर ये कैसे होते हैं? ब्राइटली कलर्ड के होंगे अगर वहां पे बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू। तो जो पेटल्स होंगे उन फ्लावर की वो अट्रैक्टिव होंगे। जिसमें आपका एबायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है, एबायोटिक दैट मीन्स लाइक वाटर एंड विंड। विंड को अट्रैक्ट करने के लिए, वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो तो एबायोटिक है। सो उन फ्लावर्स में जरूरी नहीं है कि पेटल्स आपके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो जहां पे आपका पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है, दैट मीन्स लिविंग एजेंट के थ्रू हो रहा है, वहां पे पेटल्स यूजुअली आपका ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, like calyx, corolla may be also be united. अगर united है then that type of condition is known as gamo. और here are the units, here the units of corolla are petals, so this is known as gamopetalis. Gamopetalis when petals are united. or it may be polypetalous when the petals are free होंगी तब वो कौन सी कंडीशन होगी? polypetalous, क्योंकि करोला की यूनिट पेटल्स है तो हमने वर्ड कौन सा यूज कर दिया? पेटलस। और जो कैलिक्स की यूनिट थी वो सेपल्स थी, सेपलस। फ्यूज के लिए गैमो वर्ड को ऐड करना है और फ्री के लिए हमें पॉली वर्ड को ऐड करना है। सी इन दिस डायग्राम, हियर फर्स्ट डायग्राम, दीज पेटल्स, पर्पल कलर फ्लावर है, पेटल्स आर फ्यूज्ड, आपस में फ्यूज है, एक दूसरे के साथ अटैच है, इट इज नोन एज गैमोपेटलस। एंड इन दिस डायग्राम petals are free, this condition is known as polypetalous. so free के लिए poly word को हमें यूज करना है और fuse के लिए gamo word के लिए यूज करना है। और petalous अगर corolla है तो petalous एंड अगर आपका calyx है तो sepal। नेक्स्ट पॉइंट, द शेप एंड कलर ऑफ करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट। जो हम लोग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? कोरोला की वजह से ही तो होते हैं। डिफरेंट बहुत सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स होते हैं, पेटल्स आपके डिफरेंट शेड्स के होते हैं, डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, तो जिसकी वजह से फ्लावर आपके बहुत ज्यादा वैरायटी में है। लास्ट पॉइंट, कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड एंड फनल शेप। ये आपका ट्यूबुलर भी हो सकता है, इस तरह से पेटल्स अरेंज हो, ट्यूब शेप को फॉर्म कर रही हूँ, या बेल शेप को फॉर्म कर रही हूँ, या फिर फनल शेप को फॉर्म कर रही हूँ। सी इन दिस डायग्राम अगेन, सी ये देखिए आपका अरेंज है किस तरह से, व्हील शेप में अरेंज है पेटल्स, लाइक दिस, सर्कुलर फॉर्म में है, व्हील शेप में। नेक्स्ट डायग्राम में बेल शेप में अरेंज है पेटल्स, हेयर बेल शेप में आपका जो पेटल्स अरेंज है कोरोला आपका बेल शेप का है, यहाँ पे ट्यूबुलर शेप में है, फनल शेप में है। तो आपका कोरोला ही वेरी करता है, डिफरेंट शेप में पेटल्स अरेंज होती हैं और फॉर्म करती हैं डिफरेंट शेप के फ्लावर्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टाइवेशन। नाउ व्हाट इज एस्टाइवेशन? सी एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला, नाउ हाउ द सेपल्स आर अरेंज्ड अमंग themselves in calyx whorl, how the petals are arranged among themselves in corolla whorl. This mode of arrangement is known as estivation. किस तरह से सेपल्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं, किस तरह से पेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, दिस मोड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एस्टाइवेशन। See in this diagram, four major types of estivations are given. The first one is velvet estivation. In case of velvet estivation, the margins of each unit touches with each other end to end. जो हर एक यूनिट की जो मार्जिन है वो एक दूसरे को एंड टू एंड आपका टच कर रही है विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं है, एंड टू एंड टच कर रही है। ये देखिएगा ऊपर डायग्राम में भी देखिएगा, दीज आर पेटल्स, इस तरह से एक दूसरे के साथ एंड टू एंड टच कर रही है। सेम विद सेपल्स ऑल्सो। तो दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज नोन एज वेलवेट एस्टाइवेशन। डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है, किस टाइप का उसमें एस्टाइवेशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ट्विस्टेड वर्ड का मतलब ये ट्विस्टेड फॉर्म में होगा। तो ट्विस्टेड एस्टाइवेशन में आपका जो यूनिट्स हैं, ईदर सेपल या फिर पेटल्स, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है अल्टरनेट पैटर्न में। सी हियर, वन
एंड ऑफ वन यूनिट, एक एंड एक यूनिट का ओवरलैप कर रहा है दूसरे एंड को की यूनिट को। यहाँ पे देखिए ये एक आपकी अगर ये सेपल है और हेयर इट इज सेकेंड सेपल, थर्ड सेपल, फोर्थ सेपल एंड फिफ्थ, तो फिफ्थ वाले के एक एंड को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। सिमिलरली लेकिन इसका जो दूसरा एंड है इसको ओवरलैप कौन कर रहा है, दूसरी वाली सेपल का एंड, ये सेकेंड वाली सेपल का एंड ओवरलैप कर रहा है। इस तरह से ओवरलैपिंग है अल्टरनेट मैनर में, इस तरह से एक एंड आउटसाइड एक एंड इनसाइड, अगेन दिस एंड इज आउटसाइड एंड अनदर वन इज इनसाइड, तो एक दूसरे के एंड को ओवरलैप कर रहे हैं एक साइड से, जिसकी वजह से ट्विस्टेड अपीयरेंस आ रहा है एंड दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। See in the above diagram also, one end is outside, another one is inside. Next ka one end is overlapping the first one, another end is inside. Next this is outside inside. This pattern is known as twisted estivation. Next estivation is imbricate estivation. इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में भी ओवरलैपिंग होती है, बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि नहीं एक एंड आपका आउटसाइड होगा, एक एंड इनसाइड होगा, दूसरी वाले का एक एंड आउटसाइड होगा, दूसरा एंड आपका ओवरलैप कर रहा होगा नेक्स्ट वाले यूनिट को, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है ओवरलैपिंग का। सी हियर इन दिस यूनिट बोथ द एंड्स आर इनसाइड, दोनों ही एंड्स आपके इस होल में अंदर की साइड है, बट जो इसकी बाद वाली है इसका एक एंड इज ओवरलैपिंग दिस एंड अनदर वन इज इनसाइड। नेक्स्ट ये आपका ओवरलैपिंग है, एक एंड आपका बाहर की साइड है, एक एंड अंदर की साइड है। ये वाली में आपका दोनों एंड ही बाहर की साइड है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं है, ओवरलैपिंग तो है लेकिन पर्टिकुलर मैनर में नहीं है। इसका एक एंड बाहर की साइड, एक एंड अंदर की साइड, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है, पर्टिकुलर मैनर नहीं है, लेकिन हाँ ओवरलैपिंग हो रही है पेटल्स में या सेपल्स में एक दूसरे के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। और एस्टाइवेशन एक ही होल में जो उसके मेंबर्स हैं किस तरह से अरेंज हैं उसको बोलते हैं, ना कि पेटल्स और सेपल्स एक दूसरे के साथ अरेंज है, दैट इज नॉट नोन एज एस्टाइवेशन। एक ही होल में आपस में सेपल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है या फिर पेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है उसको हम लोग एस्टाइवेशन बोलते हैं। लास्ट एस्टाइवेशन इज वेक्सिलरी एस्टाइवेशन। इन केस ऑफ पी फ्लावर्स या फिर बीन फ्लावर्स देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ एस्टाइवेशन। सी वन big petal is there, एक bigger one है which is enclosing the two smaller petal, it is enclosing the two smaller petal, again these two small enclosing the smallest one and the smallest one get united with each other from here, ये एक दूसरे के साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका एक तरह से वी शेप का पैटर्न आ रहा है। इट इज नोन एज वेक्सिलरी एक्सटाइवेशन। अब ये तो हम लोग ने सारे फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया, उस तरह उसमें पैटर्न देखा कि किस तरह से सेपल्स एंड पेटल्स अरेंज हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिए। तो यहाँ पे आपको मेजरली 4 टाइप के एस्टाइवेशंस को याद रखना है। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। एस्टाइवेशन की डेफिनेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, सेपल्स या फिर पेटल्स, पेटल्स या सेपल्स किस तरह से अरेंज है इन फ्लोरल बड या फ्लावर में या फ्लावर बड में, विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स के साथ, लेकिन वो किसके मेंबर्स होने चाहिए, ऑफ द सेम होल। अगर सेपल्स की बात कर रहे हैं तो बाकी के सेपल्स के साथ कैलेक्स में कैसे अरेंज है, अगर पेटल्स की बात कर रहे हैं तो बाकी के पेटल्स के साथ पेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है कोरोला होल में, सेम होल की बात चल रही है। एंड दिस मोड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन 4 मेजर टाइप, मेनली आपका 4 टाइप का है, वेलवेट एस्टाइवेशन, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। इसके सामने मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे गए और ये वही एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आपको इस चैप्टर में एक एक एग्जाम्पल को याद रखना है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बनते हैं नीट में। तो वेलवेट एस्टाइवेशन किसमें होता है, कैलोट्रोपिस में होता है। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन में है। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कैशिया एंड गुलमोहर में है। एंड वेक्सिलरी एस्टाइवेशन पी में है। रीड कर लेते हैं चारों के डेफिनेशन को, डिस्क्रिप्शन को। वेलवेट एस्टाइवेशन, व्हेन सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स या फिर पेटल्स इन अ होल, सेपल्स है तो कैलिक्स में, पेटल्स है तो कोरोला में, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, इट इज सेड टू बी वेलवेट एस्टाइवेशन। देखिएगा फर्स्ट वाले डायग्राम में, अगेन एंड टू एंड टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं है इस जगह से, इसको हम लोग वेलवेट एस्टाइवेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट एस्टाइवेशन
इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है। ट्विस्टेड, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, एक मार्जिन आपका अपेंडेज की, अपेंडेज मतलब सेपल या फिर पेटल्स, ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट वन है उसकी एक मार्जिन दूसरे वाले को ओवरलैप कर रही है, फिर दूसरे वाले की जो एक मार्जिन होगी वो नेक्स्ट वाले के ओवरलैप कर रही होगी, एंड सो ऑन। एज इन केस ऑफ चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ये देखिएगा एक मार्जिन ओवरलैप कर रही है इसको ना, फिर इसकी दूसरी वाले की जिसकी ओवरलैप कर रही है, फिर इसको इसकी ओवरलैप कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है, तो इस एस्टाइवेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। किसमें होता है? चाइना रोज में, लेडी फिंगर में, कॉटन में। नेक्स्ट, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स या फिर पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, ओवरलैप तो कर रही हैं बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, as in case of cassia and pulmohar, this estivation is called imbricate estivation। see again, देखिएगा कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है, दोनों ही एंड इनसाइड है। इसके बाद एक एंड आपका ओवरलैप कर रहा है, इस वाले का दूसरे एंड का इसको ओवरलैप कर रहा है। सिमिलरली इसमें दोनों एंड्स बाहर है, इसमें एक एंड यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, एक इनसाइड है, ये वाला एंड इसको ओवरलैप कर रहा है, तो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज नोन एज imbricate estivation। And the last one is vexillary estivation। In pea and bean flowers में there are 5 petals, 5 petals होंगी, देखिएगा काउंट करिएगा, 1 2 3 4 and 5। see, in pea and bean flower there are 5 petals, the largest which is known as standard overlap the 2 lateral petals। भाई लार्जेस्ट वन 2 लेटरल वाले को ओवरलैप कर रही है, यहाँ से ये देखिए ओवरलैप कर रही है दोनों को, अंदर वाले को 1 और 2 इनको। नेक्स्ट, जिनको हम लोग बोल रहे हैं विंग्स, जो इनर वन थी लार्जेस्ट से थोड़ी सी छोटी विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, 2 स्मॉलेस्ट जिनको हम लोग कील बोल रहे हैं। हियर it is known as standard petal, standard petal। petal, these two are known as wings and the smallest one known as keel। ये भी ओवरलैप कर रहे हैं विंग्स कील को। this type of estivation is known as vexillary या फिर पेप्लिनोनेशियस। इस एस्टाइवेशन को वेक्सिलरी या फिर पेप्लिनोशियस बोलते हैं। नेक्स्ट होल इज एंड्रूशियम विच इज मेल रिप्रोडक्टिव होल। इट इज एंड्रूशियम मेल रिप्रोडक्टिव होल है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस, stamens has 2 parts, one is stalk and the upper one is which is globe like structure, it is anther। so androecium is composed of, androecium is composed of stamen, each stamen which represent the male reproductive organ, stamen is a male reproductive organ, consists of a stalk or you can say that filament। here it is a filament and upper part is known as anther। यूजुअली एंथर आर बाइलोब, ये जो होते हैं एंथर वो बाइलोब होते हैं, इस तरह से एक लोब एंड सेकेंड लोब। यूजुअली जो ज्यादातर एंथर होते हैं उसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, कुछ में आपका सिर्फ सिंगल लोब प्रेजेंट होगा, सिंगल लोब इस तरह से। अगेन ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स नोन एज pollen sac। द pollen grains आर प्रोड्यूस्ड इन pollen sacs। अगर उसमें एंथर के अंदर या pollen sac के अंदर pollens नहीं है then it is a sterile stamen and it is known as staminode। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। see, here it is a filament, अपर पार्ट बाइलोब्ड एंथर ड्रॉ कर रहे हैं एंथर। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से हम इसको कट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इस तरह से एंथर कट किया और हियर इट इज फिलामेंट। तो लोब, एक ये लोब हो गया इसका, वन साइड लोब एंड सेकेंड साइड वन, सेकेंड लोब हो गया। ईच लोब कंटेन्स 2 चैम्बर्स, यहाँ पे
हर एक लोब में 2 चैम्बर होंगे इस तरह से, नीचे तक रन कर रहे होंगे इस तरह से, ये भी नीचे तक रन कर रहे होंगे, यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज रन कर रहे होंगे नीचे की तरफ, ट्यूब लाइक है क्योंकि बिल्कुल अंदर की तरफ। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। अब इन पॉलन सैक्स में क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स या पॉलेंस प्रेजेंट है, पूरे में भरे हुए पॉलेंस, पूरे में नीचे तक। सिमिलरली यहाँ पे पूरे में नीचे तक है, these are known as pollens. And those which don't have pollens, those anther in which pollens are not there, that type of stamens are known as staminode. उनको हम लोग staminode बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, किस तरह से अटैच होते हैं स्टेमन्स। There are two types of attachment. Epipetalous, when the stamens are attached with the petals. Petals के साथ attach होंगे, then that type of attachment is known as epipetalous. If the stamens are attached with perianth, perianth that means sepals के साथ attached है, it is known as epiphyllous. Now what is perianth? Perianth क्या था? See, we have already studied about calyx and corolla. If we are not able to differentiate between whether these are sepals or petals, then they are known as tepals, and the whole which is formed from tepals, it is known as perianth. See, हम लोग ने 2 होल पढ़े, outermost it is known as calyx. Calyx is formed from sepals, and next to the calyx is corolla. Corolla consists of petals. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं whether these are sepals or petals. In that case, we name them as tepals. उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, टेपल्स, ट्यूलिप के केस में, ठीक। और टेपल से जो होल फॉर्म हो रहा है, जो होल फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिएंथ, पेरिफेरी पे है। इफ द टेपल्स आर ग्रीन इन कलर, ये टेपल्स तो है, हम लोग ने आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हाँ ये सेपल्स हैं कि पेटल्स हैं, लेकिन हाँ टेपल्स अगर ग्रीन कलर के हैं, देन वी कॉल देम एज सेपेलॉइड्स। इफ दे आर कलरफुल अदर देन ग्रीन इन कलर, देन दे आर नोन एज पेटेलॉइड्स, पेटेलॉइड्स। सी, डायग्राम से समझिएगा। Here are the petals of a flower. ये पेटल्स हैं। पेटल्स से जब आपके स्टेमन्स अटैच्ड हैं इस तरह से, पेटल्स हैं और नीचे आपका सेपल्स भी प्रेजेंट है। पेटल्स से अरेंज्ड हैं स्टेमन्स, अटैच्ड है, देन दिस अटैचमेंट इज नोन एज एपीपेटलस, एपीपेटलस। एंड if tepals are there, that means perianth whorl is there. You are not able to differentiate whether these are sepals or petals, then these are known as tepals. And the whole which is formed from tepals, it is known as perianth. Perianth. When the stamens are attached with the tepals या फिर perianth, this condition is known as epiphyllous. इस तरह से attached है, इसको हम लोग epiphyllous बोलेंगे। यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, एपीपेटलस का एग्जाम्पल है ब्रिंजल एंड एपीफाइलस लिली। लिली में आपका जो लीव्स प्रेजेंट है फ्लावर्स में, मॉडिफाइड जो लीव्स प्रेजेंट है, वहां पे टेपल्स हैं। तो टेपल्स से जब अरेंज होते हैं, अटैच्ड होंगे, उसको हम लोग एपीफाइलस बोलेंगे। एंड जब पेटल्स से अटैच्ड होंगे स्टेमन, दैट इट इज नोन एज एपीपेटलस। रीड कर लेते हैं। स्टेमन्स ऑफ अ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स, फ्लावर के दूसरे मेंबर्स के साथ स्टेमन अटैच्ड है। एस्टाइवेशन में हमने सेम मेंबर्स के साथ अटैचमेंट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग अटैचमेंट स्टेमन का देख रहे हैं कि फ्लावर के किस अदर मेंबर्स के साथ अटैच्ड है, सच एज पेटल्स के साथ अटैच्ड है या फिर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो व्हेन द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब स्टेमन्स पेटल्स के साथ अटैच्ड है, इट इज नोन एज एपीपेटलस। एग्जाम्पल है ब्रिंजल। एंड एपीफाइलस कब बोलेंगे, जब वो आपका पेरियंथ के साथ, एंड पेरियंथ की यूनिट क्या है, टेपल्स, टेपल्स के साथ अटैच्ड है, एज इन केस ऑफ लिली, उसको हम लोग एपीफाइलस बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ हाउ द स्टेमन्स आर अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स, वेदर दे आर फ्री विद ईच अदर, वेदर दे आर इन ग्रुप। तो यहाँ पे अब हम लोग
देखेंगे कि कैसे स्टेमिन आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है। एंड्रोशियम में अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे स्टेमिन अटैच होते हैं फ्लावर के अदर पार्ट के साथ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेमिन आपस में किस तरह से अरेंज है। सी इन दिस डायग्राम, इफ ऑल द स्टेमेंस आर फ्री, फ्री मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं है, ग्रुप में नहीं है, सारे के सारे फ्री हैं, 1 2 3 4 5 6 सब एक दूसरे के साथ फ्री हैं, डायरेक्टली अटैच है थैलमस से, देन दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस। इसको हम लोग पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। इफ दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल ग्रुप, वन ग्रुप में अरेंज्ड है, then this is known as monadelphous, monadelphous condition. If they are arranged in two groups, दो ग्रुप में अरेंज है, 1 एंड 2 ग्रुप, एक में आपका सिंगल है और एक में आपके यहाँ पे 9 प्रेजेंट होते हैं, पी के फ्लावर में होता है, तो दो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज नोन एज डायडेल्फस। when they are arranged in more than two groups, then this is known as polyadelphous condition। poly मतलब more than two groups में, एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, तो ये ग्रुपिंग के बेसिस पे है। यहाँ पे ये अगर फ्री है सारे के सारे तो पॉलीएंड्रस कंडीशन, एक ग्रुप में अरेंज है तो मोनोएडेल्फस, दो ग्रुप में अरेंज है डाइएडेल्फस, मोर देन टू ग्रुप्स में अरेंज है तो पॉलीएडेल्फस। नाउ द नेक्स्ट इज सिनजेनेसियस एंड सिनएंड्रस। सिनजेनेसियस की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको। इन केस ऑफ सिनजेनेसियस ओनली एंथर्स आर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स आर फ्री। देखिएगा ये नीचे फिलामेंट्स कैसे हैं, आपके फ्री हैं, फिलामेंट्स फ्री है, बट जो एंथर है ये एक दूसरे के साथ क्या है, एंथर फ्यूज्ड है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनजेनेसियस। नेक्स्ट सिनएंड्रस। सिनएंड्रस इज जस्ट अपोजिट ऑफ पॉलीएंड्रस। पॉली में सारे फ्री थे, यहाँ पे देखिएगा ये सब फ्री है, एक दूसरे डायरेक्टली थैलमस से अटैच्ड है, लेकिन सिनएंड्रस के केस में पूरा फिलामेंट एज वेल एज एंथर ऑल आर फ्यूज्ड, बोथ फिलामेंट as well as anther both are fused, दोनों ही फ्यूज्ड हैं, इसको हम लोग सिनएंड्रस बोलेंगे। रीड कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स को। पॉलीएंड्रस फ्री स्टेमेंस सारे एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। मोनोडेल्फस इन वन ग्रुप, एग्जाम्पल मैंने सिर्फ उन्हीं के लिखे हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए, एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चंस एग्जाम्पल आपके नीट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो मोनोडेल्फस में चाइना रोज जिसको हिबिस्कस बोलते हैं उसमें वन ग्रुप में है, डाइएडेल्फस में टू ग्रुप्स में है, पी का एग्जाम्पल है। पॉलीएडेल्फस में सिट्रस फ्लावर में है, यहाँ पे आपका क्या है, मैनी ग्रुप में अरेंज है। सिनएंड्रस में फुल स्टेमेन आपस में फ्यूज है, फिलामेंट एज वेल एज एंथर both are fused and in syngenesis only anthers are fused, anthers are fused। डायग्राम से हम लोगों ने देख लिया, रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी के कंटेंट को। यहाँ पे द स्टेमेंस इन फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री, अगर फ्री है तो इट इज नोन एज पॉलीएंड्रस कंडीशन, और मे बी यूनाइटेड इन वेराइंग डिग्री, यूनाइटेड है तो अलग अलग टाइप के थे। if they are in one bunch or one bundle, monodelphous as in case of China rose। if they are in two bundles then it is known as diadelphous, di मतलब दो, as in case of pea, and if they are arranged in more than two bundles then it is known as polyadelphous। there may be variation in the length of filament within a flower as in salvia and mustard। यहाँ पे फिलामेंट की लेंथ में भी डिफरेंस होता है, स्मॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल आपका क्या है, सेल्विया एंड मस्टर्ड। Innermost whorl, now the last whorl is gynoecium, which is a female reproductive whorl and it consists of carpel। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। Gynoecium is the female reproductive part of the flower, yes, and it is made up of one or more carpel। एक या एक से ज्यादा कार्पल का ये बना हुआ होता है। Now the carpel consists of three parts, namely stigma, style and ovary। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कार्पल के स्ट्रक्चर को। लोअर मोस्ट पार्ट विच इज swollen, इट इज नोन एज ovary। अपर पार्ट स्टाइल and the uppermost part it is known as stigma, ovary।
style, neck-like part, and the sticky part, uppermost part, it is stigma. These three forms carpel. Stigma. Ovary contains one more structure. It is known as ovule. Now, depending upon the type of flower, ovary may contain more than one ovules also. So here it is ovule. सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, फ्लावर के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है, या फिर आपके मल्टीपल ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओवरी के अंदर ये क्या है आपका ओव्यूल. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी वॉल, दिस पार्ट, हियर इट इज फ्लैटेंड swollen part, it is known as placenta. प्लेसेंटा कुशन लाइक पार्ट, जिससे कि आपका ओव्यूल ओवरी की वॉल से अटैच्ड होता है, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट. ये देखिए बेसल पार्ट है, बेस पे प्रेजेंट है ओवरी, एनलार्ज्ड पार्ट है, बेसल पार्ट भी है, बेस पे प्रेजेंट है, और एनलार्ज्ड पार्ट भी है, स्वोलन पार्ट भी है. ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल. इलोंगेटेड ट्यूब को स्टाइल बोल रहे हैं. ये इलोंगेटेड ट्यूब लेंथ वाइज, नेक वाइज, नेक की तरह है. द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा. अपर मोस्ट पार्ट स्टाइल क्या कर रही है, ओवरी एंड स्टिग्मा को कनेक्ट कर रही है. द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, टिप पे प्रेजेंट है बिल्कुल, एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन. पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड करते हैं, तो ये रिसेप्टिव होती है पॉलन के लिए, फॉर पॉलन लैंडिंग. तो ये आपका गार्निशियम के तीनों पार्ट हो गए. इस डायग्राम से देखिएगा, लोअर पार्ट ओवरी, स्वोलन पार्ट ओवरी वॉल अभी नहीं, ओवरी पूरी ओवरी होल, ओवरी के अंदर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है, तो इट में द फ्लावर में इधर कंटेन ओनली वन ओव्यूल और मोर देन वन ओव्यूल. Long neck-like part, it is known as style. Style connects the ovary to the stigma, and stigma is the uppermost part over which pollens land. Pollens जो होते हैं वो उसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं. This is known as pollination, transfer of pollen from the anther to the stigma. इसी को तो pollination बोलते हैं. Next content. Each ovary bears one or more ovule attached to a flattened cushion-like placenta. See again. इसी सेम डायग्राम में इनसाइड दिस ओवरी, ये पूरी ओवरी है, वन और मोर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. दीज आर नोन एज ओव्यूल्स. इनको ही तो हम ओव्यूल्स बोल रहे हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है. एंड ओव्यूल्स जहां से अटैच्ड है वो स्वोलन पार्ट, कुशन लाइक पार्ट, दिस पार्ट कुशन लाइक पार्ट, इट इज नोन एज प्लेसेंटा. इसी को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं. When more than one carpel is present, they may be free and are called apocarpus. अगर आपका फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो सब आपस में फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, then this condition is known as apocarpus. And when all the carpels are fused with each other, then it is known as syncarpus. इसको हम लोग syncarpus बोलेंगे कार्पल. As in case of mustard and tomato. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं. जब आपका जो कार्पल है वो फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, इट इज नोन एज एपोकार्पस. एग्जाम्पल क्या है आपके, लोटस एंड रोज. व्हेन द कार्पल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, देन इट इज नोन एज सिनकार्पस. सिन मतलब एक फ्यूज होना, सिनकार्पस. एंड एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड टोमेटो. लिख देते हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो. डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे पहले एपोकार्पस देखते हैं. ये कार्पल्स प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है. वन कार्पल, टू कार्पल, थ्री कार्पल, फोर कार्पल, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, एपोकार्पस. फ्यूज नहीं है, फ्री है कार्पल. साइड वाले डायग्राम में देखिएगा, ये पूरा 1 2 3 4 पीछे 5, ये आपस में पूरा फ्यूज है स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ ओवरी इज नोन एज सिनकार्पस ओवरी. सिनकार्पस ओवरी है. एंड ए वाले डायग्राम में देखिएगा, आपका ओवरी में, ओवरी साइड में तो कार्पल फ्यूज है, लेकिन अपर साइड में जो ये है, ये आपके स्टिग्मा आपस में एक दूसरे के साथ फ्री है. नेक्स्ट टॉपिक, प्लेसेंटेशन. सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट प्लेसेंटा.
What is placenta? Placenta is a flattened cushion-like structure to which the ovules are attached to the ovary wall. जहाँ से ओव्यूल्स ओवरी की वॉल से अटैच होते हैं वहाँ पर फ्लैटेंड कुशन लाइक जो स्ट्रक्चर है उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं. Suppose here it is the structure of a ovary style. So in part of the carpel it is ovary. This one is ovary. Let's suppose this ovary contains only single ovule. Suppose इसके अंदर सिर्फ सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, single ovule, and the point of attachment of the ovule to the ovary wall here, जहां से ये ओव्यूल ओवरी की वॉल से अटैच्ड है, ये फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज प्लेसेंटा. इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं. नाउ व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी. ओवरी के अंदर किस तरह से ओव्यूल अरेंज है उसी को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं. ओवरी मे कंटेन सिंगल ओव्यूल और मोर देन वन ओव्यूल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लावर या टाइप ऑफ प्लांट. फ्लावर के टाइप पे डिपेंड करता है कि उसकी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है या मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट है. प्लेसेंटेशन क्या है? किस तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल अरेंज है उसे को ही हम क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटेशन बोल रहे हैं. और यहाँ पे आपका 5 टाइप का प्लेसेंटेशन दिया गया है. मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. इनको पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं. फर्स्ट वन इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. एज द नेम सजेस्ट, मार्जिन, मार्जिनल, मार्जिन पे प्रेजेंट है ओव्यूल. और यहाँ पे किस साइड पे प्रेजेंट है? वेंट्रल सूचर पे प्रेजेंट है. सबने पी देखी है, पी पॉड, पी की फली. इस तरह से आपका पूरा राउंड होती है और एक पॉइंट पे वो कनेक्टेड होती है. वहां पे आपको एक लाइन दिख रही होती है मटर में, मटर में दिख रही होती है इस तरह से. ये पूरी राउंड है, ये मटर है सपोज, यहाँ से राउंड है और एक साइड पे आपको एक इस तरह से सूचर दिख रही होगी, लाइन दिख रही होगी, इसको बोल रहे हैं सूचर. इस सूचर पे ही तो आपके दोनों साइड पे ऐसे मटर के दाने अरेंज होते हैं, तो मार्जिन पे अरेंज है. और ये आपके ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप हो जाते हैं. फ्लावर में जब तक प्रेजेंट है ओवरी के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन तब तक उनको ओव्यूल बोलते हैं. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डेवलप इनटू सीड. और ओव्यूल यहाँ पे मार्जिन पे अरेंज है. और इस साइड को जहाँ पे ये अरेंज है, ये सूचर जहाँ बना होता है, पी सबने छीली और मटर की जो पॉट होती है, फली होती है, सबने छीली, मटर के दाने निकाले, तो एक लाइन बनी होती है. उस लाइन को हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं पी की. और वहां पे दोनों साइड जब ओपन होते हैं दोनों साइड पे आपके अरेंज होते हैं मटर के दाने. तो दोनों साइड पे मार्जिन में प्रेजेंट है, इसलिए हम इस प्लेसेंटेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? मार्जिनल प्लेसेंटेशन. नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. एक्सेस पे सपोज ये आपका ओवरी है, कोई ओवरी को हमने यहाँ से कट किया, इस जगह से जब कट किया तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा. अब ये जो अंदर की ओवरी की जो स्पेस है वो अंदर फर्दर मेनी कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है. 2 कंपार्टमेंट में, मोर देन 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है. इट इज अगेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अ फ्लावर, किस टाइप का फ्लावर है. ओवरी की वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं. दैट इज द वॉल ऑफ अ ओवरी. ये पूरी ओवरी की वॉल, ये भी आपकी पूरी बाहर से ओवरी है. अब अंदर वाली जो स्पेस है वो आपकी मेनी कंपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड है. सपोज 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3. नाउ ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज लोक्यूल. हर एक कंपार्टमेंट को अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? लोक्यूल. इट इज नोन एज लोक्यूल. ये ओवरी को कट किया हमने, कट करके कुछ ऐसा दिखा. अब हर लोक्यूल में ओव्यूल्स आपके प्रेजेंट है, सिंगल भी प्रेजेंट है या आपका मल्टीपल ओव्यूल भी प्रेजेंट है. ये आपके ओव्यूल हो गए. और बीच में ये एक्सेस बन गई होगी इस तरह से, सेंटर से आ रही पास हो रही होगी, एक्सेस है. तो एक्सेस आपका भी कंपार्टमेंट में भी डिवाइडेड है और एक्सेस भी बनी हुई है, फ्री नहीं है. सेंटर पे आपका ये एक्सेस है, वॉल से, साइड वाली वॉल से भी अटैच्ड है. तो सेंटर पे यहाँ पे आपका एक्सेस प्रेजेंट है और यहाँ मैनी कंपार्टमेंट में डिवाइड है, 1, 2, 3. तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को हम एक्साइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं क्योंकि ओव्यूल्स आपके सेंटर वाली एक्सेस से अटैच्ड है. देखिएगा इस डायग्राम में सेकंड वाले में, यहाँ पे जो बुक में आपको दिया गया है, ये ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन है. ट्रांसवर्स सेक्शन में अपर साइड से ओवरी इस तरह से है, आपने ऐसे काटा, उसको ऊपर साइड से देख रहे हो तो कैसे दिखेगी? 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट. इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोक्यूल. ये जो है आपकी ये ओवरी की वॉल है, ओवरी की वॉल. ये अंदर साइड भी गई है जिसकी वजह से आपके कंपार्टमेंट में डिवाइड हुई है. ये भी आपकी ओवरी की वॉल है. इसमें आपके छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट है. 1 कंपार्टमेंट, 2 ओव्यूल यहाँ पे, 2 ओव्यूल यहाँ पे, 2 ओव्यूल यहाँ पे. और ये बीच वाली सेंट्रल एक्सेस बन गई होगी, ये कंपार्टमेंट जब डिवाइड हुए होंगे. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्साइल प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्सेस से आपके ओव्यूल्स अटैच्ड है. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पैराइटल. पैराइटल मींस पेरीफेरी, पेरीफेरी पे. तो ये जो आपकी ओवरी की वॉल है पेरीफेरी पे, ये पेरीफेरी पे.
यहाँ पे आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है इतने रीजन पे, फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्लेसेंटा है, यहाँ पे प्लेसेंटा है जहाँ से ओव्यूल अटैच्ड है, और इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच्ड है, तो पेरीफेरी से अटैच्ड है, बाउंड्री से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। व्हाट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन? सेंटर में एक्सेस है लेकिन वो साइड में ओवरी की वॉल से कनेक्टेड नहीं है, एक्सेस तो है, जैसे आपका एक्सेल वाले में कंपार्टमेंट डिवाइड है 1 2 3, लेकिन फ्री सेंटर में देखिएगा, ये आपकी अगर सपोज आपने ओवरी को कट किया इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया, तो ये साइड से नहीं है, बीच से एक एक्सेस जा रही है सीधी सीधी, सेंटर पे फ्री है, यहाँ से स्टार्ट हुई ऊपर तक जा रही है, और इससे आपके बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, पूरे चारों तरफ ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, तो सेंटर से अटैच्ड है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। तो एक्सेस यहाँ पे भी और एक्सेल वाले में भी है, लेकिन एक्सेल वाले में कंपार्टमेंट डिवाइड है और साइड वाली बाउंड्री से भी आपका ये एक्सेस जुड़ी हुई है, लेकिन फ्री सेंट्रल तभी यहाँ पे दिया, नाम क्या दिया, फ्री, सेंटर से ही एक एक्सेस गई हुई है और यहाँ से आपके ओव्यूल बहुत सारे अटैच्ड हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एंड द लास्ट वन इज बेसल प्लेसेंटेशन। एज द नेम सजेस्ट, बेस, बेस से आपका अटैच्ड है, ये आपका यहाँ से बेस से अटैच्ड है, दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं, बेस से ओव्यूल अटैच्ड है, ओवरी की वॉल से बेस से, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे टाइप के प्लेसेंटेशन को। प्लेसेंटेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर किस तरह से ओव्यूल अरेंज है, सिंगल है तो वो किस तरह से अरेंज है, या फिर मल्टीपल है तो किस तरह से अरेंज है, उसी अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन बोल रहे हैं। प्लेसेंटेशन आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जब मार्जिन से अटैच थे आपका ओव्यूल्स, टी के पॉट में इस तरह से मार्जिन से अटैच है वेंट्रल सरफेस से। एक्सेल में जब आपकी जो ओवरी थी मल्टीपल लोक्यूल्स में डिवाइडेड थी और सेंटर पे एक एक्सेस जा रही थी, उसको एक्साइल प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, ये सारे एग्जाम्पल अगेंस्ट एनसीईआरटी वाले ही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन में पेरीफेरी से अटैच्ड है, इस तरह से पेरीफेरी की वॉल से अटैच्ड है, यहाँ पे प्लेसेंटा पेरीफेरी पे प्रेजेंट था, तो पैराइटल हो गया। बेसल के केस में क्या था, बेस से अटैच था ओव्यूल आपका, इस जगह से बेस से अटैच्ड है, इट इज नोन एज बेसल प्रेजेंटेशन। एंड फ्री सेंट्रल के केस में क्या था, लोक्यूल सिंगल प्रेजेंट था। फ्री सेंट्रल और एक्सेल में डिफरेंस क्या है, एक्सेल में आपका जो ओवरी है वो मैनी लोक्यूल्स में डिवाइडेड है और ये जो एक्सेस है वो साइड वाली वॉल से, इसी ओवरी की वॉल से अटैच्ड है। लेकिन फ्री सेंट्रल में क्या है, सिर्फ सेंट्रल से, बीच से आपका, बिल्कुल बीच से आपका एक एक्सेस गई हुई है और यहाँ से ओव्यूल अटैच्ड है, इट इज नोन एज फ्री सेंट्रल। एंड एग्जाम्पल है दतूरा या फिर प्रीमोस, दतूरा एंड प्रीमोस में आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। रीड कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट भी इसका। प्लेसेंटेशन, in marginal placentation the placenta form a ridge along the ventral surface, ventral surface जहां से ये ओपन हो रही, तो इसकी इस वाली पी की वेंट्रल सरफेस, ये वाली वेंट्रल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, लाइन यहीं पे प्रेजेंट है। ऑफ द ओवरी द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज, इसी रिज पे ही, रिज मतलब ये इसी लाइन पे ही अटैच्ड है ओव्यूल्स, फॉर्मिंग टू रोज, दो रो बन रही है इस तरह से और इस तरह से, एक इस साइड अटैच्ड है, फिर एक इस साइड, सबने मटर में देखा होगा दो रो बन रही है, इसी को हम लोग मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सियल प्लेसेंटेशन, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, ये देखिएगा मैनी लोक्यूल्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है और इससे इस तरह से ओव्यूल अटैच्ड है, इसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम, टोमेटो में भी ये एक्सिस आ रही है, ये प्लेसेंटा है पूरा, ये पूरा प्लेसेंटा है, दो लोक्यूल में डिवाइडेड है, इधर आपके ओव्यूल अटैच्ड है, ये भी ओव्यूल अटैच्ड है, तो ये भी आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन है। रीड कर लेते हैं। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोकुलर ओवरी, मल्टीलोक्यूल्स प्रेजेंट है। वन लोक्यूल क्या था, जो ओवरी है अंदर मैनी कंपार्टमेंट में डिवाइड है, हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, लोक्यूल। अगर वहां पे कंपार्टमेंट नहीं है तो सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट है, यूनिलोकुलर उस ओवरी को बोलेंगे, और मैनी लोक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको मल्टीलोकुलर ओवरी बोलते हैं। तो मल्टीपल लोक्यूल 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 एंड 2 लोक्यूल, उसमें आपका बीच में प्लेसेंटा ये पूरा। एग्जाम्पल क्या है एक्सेल प्लेसेंटेशन के, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन। इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, पेरीफेरी साइड पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, प्लेसेंटा आपका पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। सपोज हियर इट इज अ ओवरी, लोअर पार्ट, यू हैव कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ओवरी, ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, इट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन।
This is the wall of the ovary. वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल पे या फिर आप बोल सकते हो पेरीफेरी पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्लैट एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा से आपके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। डिपेंड करेगा किस टाइप की ओवरी है तो ओव्यूल के नंबर भी वेरी करेंगे। पेरीफेरी पे आपका ओव्यूल्स अटैच्ड है। दिस इज नोन एज पेराइटल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, फ्रूट का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो इसकी जो वॉल है वो थिक हो गई है, जो ओव्यूल है वो अंदर की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये अटैच्ड कहाँ से, पेरीफेरी से ही अटैच्ड है, पेरीफेरी से ही अटैच्ड है। देखिएगा कुछ इस तरह से अंदर की साइड, ये प्लेसेंटा 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 ये प्लेसेंटा है, और इससे आपके हर एक प्लेसेंटा से दो दो ओव्यूल अटैच्ड है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। ठीक, तो क्योंकि पेरीफेरी से अटैच्ड है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum। कुछ केसेस में ओवरी आपका वन चैम्बर्ड की होती है, सिंगल आपका लोक्यूल प्रेजेंट होता है, बट लेटर ऑन वहां पे एक सेप्टम फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो चैम्बर आपका दो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल उसके हैं मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। स्टार्टिंग में एक ही चैम्बर प्रेजेंट है, एक ही सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट है, बट लेटर ऑन एक थिन सेप्टम क्रिएट हो जाती है, फॉल सेप्टम जिसको बोलते हैं, और वो आपका ओवरी दो चैम्बर पे डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल क्या थे, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन, सेंट्रल एक्सिस प्लेसेंटेशन। एक्सियल वाला जो प्लेसेंटेशन था वहां पे आपका जो ओवरी थी मल्टीलोकुलर थी, लेकिन यहाँ पे फ्री सेंट्रल आपका प्लेसेंटेशन है। फ्री सेंट्रल मतलब अगेन ओवरी, ओवरी का आपने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया तो इसके बेस से आपकी एक एक्सिस फॉर्म हो रही है इस तरह से ऊपर की तरफ, तो सेंटर से सिर्फ एक्सिस जा रही है, पेरीफेरी से अटैच नहीं है, एक्सिस सेंटर से है, और इस एक्सिस से, ये सेंटर से एक्सिस गई हुई है, इस एक्सिस से आपके ओव्यूल अटैच्ड है, मल्टीपल ओव्यूल्स अटैच्ड है। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है इसके, दतूरा एंड प्रीमोस। ये जो आपका प्लेसेंटेशन है आ रहा है, प्लेसेंटा जो है वो सेंटर से बेस साइड से ऊपर की तरफ एक्सिस फॉर्म हो रही है, और इसी से ही आपके मल्टीपल ओव्यूल्स अटैच्ड है। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन, लास्ट वन, बेसल प्लेसेंटेशन। बेस से अटैच्ड होगा ओव्यूल। रीड कर लेते हैं, द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। बेसल प्लेसेंटेशन में सिंगल ओव्यूल अटैच्ड है, ये देखिएगा ये अटैच्ड है। This type is known placentation is known as basal placentation. Example is sunflower and marigold. This is all about placentation. Let us discuss some questions related to today's topic. So here is question number first. Which one of the following plants shows vexillary estivation and diadelphys system? Now what do you mean by estivation? Estivation is the mode of arrangement of sepals or petals among themselves in that particular hort. If we are talking about calyx, then how sepals are arranged among themselves in calyx hort. If we are talking about corolla, then how petals are arranged among themselves in corolla hort. This mode of arrangement is known as estivation. कैसे sepals आपस में एक दूसरे के साथ calyx में arrange हैं, कैसे आपके petals एक दूसरे के साथ corolla वाले hort में arrange हैं, उस arrangement को ही हम क्या बोल रहे हैं, estivation. See in this diagram, we have studied about 4 types of estivation: velvet, twisted, imbricate and vexillary. Last one is vexillary. In case of vexillary estivation, there is one large petal. It is known as standard petal. Standard. This surrounds two smaller petals known as wings. And again wings. Yeah, these two petals surround the smallest petals. Smallest petals को surround कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कील. सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन कौन से प्लांट में होता है ये पूछा गया है, और साथ ही साथ उसमें डाइएडल्फस स्टेमेंस प्रेजेंट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइएडल्फस? डाई मतलब टू, व्हेन द स्टेमेंस आर अरेंज्ड इन टू ग्रुप्स then they are known as diadelphous stamen. See in this diagram, we have studied polyandrous stamens, synandrous, syngenesious, polyadelphous, diadelphous and monodelphous. When the stamens are arranged in single group, it is known as monodelphous. When these are arranged two group, 1 and 2, diadelphous. More than 2, 1, 2, 3, 4, polydelphous. When only anthers are fused and filaments are separate, free, then it is known as syngenesious. When whole stamen is fused, filament as well as anther are fused, it is known as synandrous. And when
All the stamens are free, directly attached to the thalamus part. These are known as polyandrous. So diadelphous stamen and vexillary estivation किसके केस में है? It is in Pisum sativum. ये आपका Pisum sativum पी के प्लांट में होता है, साइंटिफिक नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part. किस टाइप के प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनर वॉल पे या फिर पेरीफेरी पे अरेंज होते हैं. सी हियर इन दिस डायग्राम, here are different types of placentation. Marginal, in which ovules are arranged at the margin. Axile, central axis पे. Free central, ये एक्सिस आपका बिल्कुल सेंटर से, बेस से आपका राइज हो रही है, पूरी ओवरी में रन कर रही है अपर डायरेक्शन में. एंड पेराइटल, पेरीफेरी से अटैच्ड है. तो क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया था? पेरीफेरी से जो अटैच्ड है, ठीक है, बाउंड्री से अटैच्ड है. दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज पेराइटल प्लेसेंटेशन. इट इज नोन एज पेराइटल प्लेसेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The standard petal of a peplinoceous corolla is also called. Again, estivation वाला पार्ट है ये. estivation में vexillary estivation. इस estivation में जो आपका standard petal है, ये this one, this is known as standard petal. largest one को हम लोग standard petal बोलते हैं. इसका another name क्या है? और इस estivation को हम लोग peplinoceous estivation भी बोलते हैं. It is known as vexillum. ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग वेक्सिलम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, मार्जिन आपकी ओवरलैप कर रही हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द कंडीशन इज टर्म्ड एज. अगेन एस्टिवेशन क्वेश्चन. सी हियर. इन केस ऑफ वेलवेट एस्टिवेशन, द मार्जिन्स टचेस टू ईच अदर एंड टू एंड. ये मार्जिन्स आपकी टच कर रही हैं, ओवरलैपिंग है नहीं. नेक्स्ट, ट्विस्टेड एस्टिवेशन. इन केस ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न. वन एंड इज ओवरलैपिंग द अनदर एंड ऑफ अनदर यूनिट. एक आपका एंड आपका दूसरी यूनिट के एंड को ओवरलैप कर रहा है. सिमिलरली ये आपका कंटिन्यू कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में. बट इन केस ऑफ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ओवरलैपिंग तो है बट कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. सी, here one end is overlapping and another one is not overlapping. Here next is overlapping, not overlapping. Here both the ends are inside this hole. ये अंदर की साइड है इस होल में. So this type of estivation is known as imbricate estivation. There is not a particular pattern. जो आपकी sepals हैं या फिर petals हैं overlap तो कर रही हैं but not in a particular manner. So it is known as imbricate estivation. It had been asked in 2014. Next question. The gynoecium consists of many free pistils in a flower. So again example based question. This diagram is given in NCERT. When the carpels are free, this condition is known as apocarpus. And when the carpels are fused, this type of gynoecium is known as syncarpus. So at the base description is given. So first one is the diagram of hibiscus showing pistil. Next multicarpellary आपका syncarpus pistil का डायग्राम दिया गया है. It is of papaver. तो papaver में आपका syncarpus है. हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है फ्री कार्पल किस में प्रेजेंट है. तो फ्री कार्पल आपका ये सी वाला डायग्राम है. सी वाला डायग्राम का जो एग्जाम्पल है इट इज माइकेला. माइकेला. सो सी हियर माइकेला इज गिवन. फ्री पिस्टल जिसमें पिस्टल आपस में फ्यूज नहीं है तो एग्जाम्पल आपका माइकेला है. डायरेक्टली आपको याद करना है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. इन यूनिकुलर ओवरी, यूनिकुलर ओवरी मीन्स द ओवरी विच हैज ओनली single locule. Suppose here it is ovary wall and here it is only single locule. In this locule only single ovule is there, single ovule present here. So this type of placentation is, it is in basal placentation. Basal placentation के केस में आपका single ovule present है. Again see in this diagram, last one is basal placentation. In case of basal placentation only single ovule is there. So ये आपका, और प्लेसेंटा कहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे है. तो बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक.